Welcome students. In this video, we will learn measures of central tendency, that is mean, median and mode, that comes under the chapter 4 data handling. So some basic terms that we need to understand is this central tendency comes under statistics, which is the process of drawing facts from the numerical data that includes the collection, presentation and interpretation of the data. Collection of data is done, presented through graphs and it is interpreted through them. डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे घर के सामने से निकलने वाले व्हीकल्स का डेटा कलेक्ट करना चाहें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हम कैलकुलेट करेंगे, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स कितने निकल रहे हैं. इफ आई एम पर्सनली डूइंग इट, अगर मैं उस डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर कहलाऊंगी. और अगर डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है, दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. ये डेटा रॉ डेटा कहलाता है. इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो मैं ये डेटा अगर किसी सेकंड पर्सन को देती हूँ, वो सेकंड पर्सन उसे प्रोसेस करेगा, then that data will be called as processed data or secondary data. So the data is a collection of numerical facts regarding particular type of information. A raw data is the collection of observations gathered initially. The range, the difference between the highest and the lowest value of the observation in a data is called as the range. So moving on to the measures of central tendency. Measures of central tendency are numerical descriptive measures. Numerical descriptive measures मतलब numerical value देते हैं, which indicates or locates the center of a distribution or data. किसी भी डेटा की central value को denote करते हैं. So the measures are mean, median and mode. Mean जो mostly हम बहुत commonly हम निकालते हैं average, median, middle value of a data, and mode, it is the most common occurring value. Let us learn them one by one. Mean हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं. जैसे आप 6 सब्जेक्ट स्टडी करते हो और आपके टर्म 1 में जो भी मार्क्स आए, आप नॉर्मली एवरेज मार्क्स निकालते हैं. यू एड ऑल द मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय 6. 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप ऐड करके उसे डिवाइड बाय 6 कर देते हो. दैट इज द फॉर्मूला फॉर मीन. It is found by adding all the observations divided by the total number of observations. मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं. x के ऊपर एक लाइन होती है, उसे रीड करेंगे हम x बार. It is also called as arithmetic mean. So mean for ungrouped data, इसका फॉर्मूला है x बार is equals to summation of x upon n. Summation of x represent करेगा एडिशन. समेशन का मतलब होता है एडिशन. यहाँ आप एक देख रहे होंगे इनवर्ट ई या ई के जैसा एक साइन बना हुआ है. दैट इज प्रोनाउंस्ड एज समेशन. समेशन ऑफ एक्स मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. टेकिंग एन एग्जांपल, द एज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन अ स्कूल आर गिवन. You can see the ages of mathematics teachers are given. How many teachers are there? Let us count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We need to find the mean age. Mean निकालना है हमें x bar. It will be equal to summation of all the ages divided by number of mathematics teachers. 7 teachers थी तो divided by 7 किया हमने. That will give you, add करके हम divide करेंगे तो x bar की value आएगी 35. This is the mean age. Now mean for grouped data. अगर टेबुलर फॉर्म में आपको कोई डेटा दिया है और उसके अंदर ग्रुप्ड डेटा मतलब कोई एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसे टेबल के फॉर्म में ग्रुप करके लिख देते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेटेड मीन. हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फॉर्मूला याद रखिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स. एफ इंटू एक्स करना है डिवाइडेड बाय एन. एन को आप समेशन ऑफ एफ भी लिख सकते हैं. टेकिंग एन एग्जाम्पल,
Below is the money contributed by 40 students of class 7. Class 7th के 40 students ने money contribute किया है. So the table is given as this. Money contributed in rupees, it will be represented as X, and number of students is represented as F, frequency. जैसे 140 रुपीज 2 स्टूडेंट्स ने दिए हैं, 140 6 स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 140 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम उसको बार बार ना लिखते हुए हम उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट fx फॉर दिस. fx मतलब जो करस्पॉन्डिंग f और x की वैल्यू है, फर्स्ट वाली f की वैल्यू फर्स्ट वाले x से मल्टीप्लाई होगी, 140 इंटू 2 दैट विल गिव यू 280. सेकेंड वाली f और x f2 और x2 मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव यू 852. इसी तरीके से f3 x3, f4 x4, f5 इंटू x5, f6 इंटू x6 की हमने वैल्यू निकाली. नाउ यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो f दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स थे क्वेश्चन में, 40 स्टूडेंट्स थे. जब आप समेशन ऑफ x निकालोगे, समेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f निकालोगे, तो ये आपको देगा 40. तो हमें कैलकुलेट करना है मीन, जिसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ fx अपॉन n. n यानी समेशन ऑफ f भी होता है. तो विल कैलकुलेट समेशन ऑफ f दैट इज n, ये 40 आएगा. समेशन ऑफ fx हम कैलकुलेट करेंगे, ये fx के कॉलम की सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, which gives us 5779. Substituting the values in the formula 5779 upon 40, that will give you 144.475 rupees. So हर एक स्टूडेंट ने ऑन एन एवरेज 144.47 रुपीज दिया है. Now what is the properties? What are the properties of mean? मीन हम किसी भी न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के लिए केवल और केवल एक ही मीन होगा, एक से ज्यादा मीन वैल्यू नहीं निकल सकता है. मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम एंड डिविएंट वैल्यूज. एक्सट्रीम और डिविएंट वैल्यूज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है. एक्सट्रीम मतलब आप लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू का कह सकते हैं. इट इज कन्वीनियंट टू यूज इफ द डेटा वैल्यूज आर स्मॉल. अगर आपने देखा, अगर डेटा वैल्यूज छोटी हैं, x की वैल्यूज और f की वैल्यू छोटी हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने में इजी रहता है. लेकिन अगर यही वैल्यूज थाउजेंड्स में आ जाएं, हंड्रेड्स में आ जाएं, तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. इसलिए छोटी अगर वैल्यूज दी हुई है तो उसके लिए कन्वीनियंट होता है मीन निकालना. नाउ कमिंग अप टू मीडियन. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द सैंपल ऑफ द डेटा. यानी आपको एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, उसकी मिडिल वैल्यू जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मीडियन. बट द कंडीशन इज इट शुड बी इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो भी डेटा आपको दिया है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो यहाँ हम ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कुछ एग्जाम्पल लिया है हमने. सपोज ये वैल्यूज दिए हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22. व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ दिस? तो आप देखें यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक एक वैल्यू कैंसिल करते हुए आए. जैसे 16 इज द लोएस्ट वैल्यू, 22 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, आप उसे कैंसिल कर दें, तो मिडिल वैल्यू कहाँ पर आएगी? ऐसे 17 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 20 कैंसिल होगा, 19 विल गिव यू द मिडिल वैल्यू. तो यहाँ n की वैल्यू 7 है, विच इज ऑड. आप मिडिल वैल्यू निकालेंगे, दैट विल गिव यू एज द मीडियन. 19 इज द मीडियन वैल्यू. नाउ व्हेन n विल बी इवन, यहाँ इन्हीं वैल्यूज में हमने एक और ऐड कर दिया 23. अब n की वैल्यू हो गई इवन. अगर हम कैंसिल करते हुए आए तो मिड में बिल्कुल बीच में आपको 19 और 20 दो वैल्यूज मिलेगी. तो मीडियन कहाँ आना चाहिए? बिल्कुल सेंटर में. 19 और 20 के बीच में कोई नंबर नहीं है. इसे कैलकुलेट करने के लिए हम निकालेंगे 19 और 20 का एवरेज. मतलब 19 प्लस 20 दो वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आंसर कितना आएगा? 19.5. Let us see the formula for this. First, arrange the data in the ascending or descending order. अब दो केसेस हैं. अगर n की वैल्यू ऑड है
तो मीडियन हम निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। इस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा मीडियन होगा। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, यहाँ n जब ऑड था 7, तो 7+1 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या देगा आपको 4। आप स्टार्टिंग से कैलकुलेट करें, फोर्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीन होगा। तो यू विल सी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 16, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। 19th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा मीन है। कमिंग अप टू द सेकेंड केस, व्हेन n इज इवन, n जब इवन है तो n/2 और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन जो है, इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं हम। वापस आए एग्जाम्पल पे, यहाँ n की वैल्यू 8 थी, 8 डिवाइडेड बाय 2 n/2, 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 4 प्लस n डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन से हमारे 19 एंड 20, इन दोनों का हमको एवरेज निकालना था, वही हमने किया था। सो दिस इज द मीडियन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन? मीडियन जो भी वैल्यू निकलती है उसका 50% वैल्यू जो रहती है वो उस मीडियन से छोटी होती है और 50% वैल्यू हमारे मीडियन से बड़ी होती है। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम और डिविएंट वैल्यूज। आपकी वैल्यूज कितनी भी डिविएटेड हो या कितनी भी अलग अलग हो, उनसे अफेक्ट नहीं करता है मीडियन। Median is appropriate to use when there are extreme or deviant values. Median is used when the data are ordinal. Ordinal in case हम उन्हें array में arrange करते हैं, that means ascending या descending order में. Also, for a set of numerical data, there is only one and only one median. जैसे एक ही mean हो सकता है, वैसे median भी एक ही होता है. Coming up to mod, the mod, it is the most frequently occurring data. जो सब आप केवल देखकर मॉड निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मतलब जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मॉड होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ आप देखेंगे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, so in this case there is no mod. Let us take another example. For our convenience, I have taken the data in ascending order. हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर प्रॉपर और कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग आई हैव अरेंज द डेटा। यहाँ आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 7 4 टाइम्स, 9 भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नाउ हियर देयर इज अ टाई, तो 7 और 9 दोनों मॉड हैं। कमिंग अप टू थर्ड एग्जाम्पल, देखिए 4.0 and 3.5, these both are repeated. Again, यहाँ पर भी मॉड क्या होगा 4.0 and 3.5 both. Coming up to properties of mod, it is used when you want to find the value which occurs most often. It is a quick approximation. Quick मतलब आप देखकर इंस्पेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। It is most unreliable. Unreliable इसलिए होता है क्योंकि its value is undefined in some observations. कई बार उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो किसी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के लिए एक से ज्यादा भी मॉड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और कोई मॉड नहीं भी हो सकता है। So that's all for this video. Thank you for watching.